नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई 30,000 कोर्ट में अरुणाचली वकील और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों पर नस्लवादी हमले की सुनवाई, साथ ही नीदो तानी और हाल ही में हुए सलोनी मर्डर केस पर भी सुनवाई की गई। 30,000 कोर्ट के वकीलों ने एक अरुणाचली वकील ली मार लिनोशी और छात्र प्रतिनिधियों मावियो और राजू बुई के साथ मारपीट की थी। इस मामले पर कई बार सुनवाई टलने के बाद आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कल केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकीलों ने मामले को आपराधिक अवमानना का केस बताया। सीनियर वकील उपमन्यु हजारिका ने सुनवाई के बारे में बताया, साथ ही नीरो तानिया और सलोनी मर्डर केस की बात कहते हुए दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर अपना गुस्सा भी व्यक्त किया। You see, as far as Tisari case is concerned, there was an assault on the lady lawyers who are from the northeast by the by lawyers who were friends of the accused. We had filed a criminal contempt. The court has issued notices to criminal contempt to the contemners named. Also called for reports, etc. from the police, and the matter is now fixed for 11th of August 2014. As far as the Nido Tania case is concerned, because as you are aware, this is a continuing case, because Nido Tania was the trigger for the case. Because now it's a case where the court monitors where hate crimes and other disabilities faced by northeastern people in Delhi. So the latest incident of Saloni being killed in Kotla Mubarakpur was taken up by the court, and we brought to the court's attention that basically there are 3-4 rogue areas in Delhi, primarily Kotla Mubarakpur, Lajpat Nagar and Munirka, and a partly north campus near Delhi University, which also have problems where where northeastern people have to face are subject matters of hate crime. So the court says that it's going to pass directions in this regard. The central government has also said that they are going to seek reports from various agencies in this connection. One very important factor is that in February 2014, the court, the central government had constituted a high-level retired bureaucrats committee to go into all issues facing the northeastern people, headed by MP Bez Barua. Even as the next hearing is scheduled for 11th August, it is indeed a relief that the Apex Court of Delhi is looking proactively into Northeast concerns. This is a U-turn from the earlier status when Northeast cases had to go through long winding legal procedures and no justice was served. Let us hope that this time around there will indeed be justice. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. दिल्ली हाई कोर्ट में नॉर्थ ईस्ट से संबंधित मामलों की एक संयुक्त सुनवाई में सीनियर वकीलों ने कोर्ट से अपील किया कि वो भारत सरकार को ये बताए कि बेज बरुआ समिति द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसे अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। 11 जुलाई को दी गई रिपोर्ट में पूर्वोत्तर समुदाय के लोग जो अपने राज्य से बाहर रहते हैं उनकी रक्षा के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की बात शामिल है। आइए देखते हैं इस मामले पर सीनियर एडवोकेट हजारिका ने क्या कहा। One very important factor is that in February 2014, the court, the central government had constituted a high-level retired bureaucrats committee to go into all issues facing the northeastern people, headed by MP Bez Barua. We had asked, we have requested the court that the central government be directed to file an action taken report on all the recommendations of the Bez Barua committee report, which had been filed about 2 weeks ago. So the matter now will be taken up on 11th of August on all these 3-4 issues. नागालैंड के नवनियुक्त राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य ने दिल्ली के नागालैंड हाउस में की पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधि और दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों से मुलाकात। दिल्ली में पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों के सामने आ रही समस्या पर राज्यपाल ने चिंता जताई। साथ ही दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य के लोगों पर हो रहे नस्लवादी भेदभाव को खत्म करने के लिए गंभीर कदम उठाने की बात भी की। बैठक में बहुत से लोगों ने भेदभाव और नस्लवाद को लेकर कई सवाल उठाए थे। गवर्नर ने मीडिया से बात की और नॉर्थ ईस्ट के विकास पर काफ़ी चर्चा की। गवर्नर के साथ साथ बीजेपी पूर्वोत्तर सेल के लिंडा ल्यूमाई और नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष लीका चीसी भी मौजूद थे। More and more infrastructure, roads, connectivity from everywhere, connectivity from village to village, district to district. There are many things which are in the minds of the government, many projects, and people who are suffering. Widows are there, single women are there, education is there. We will see address to those problems sincerely and things will be done. Constructive things more and more hostels, admission facilities,
security for the DC, the government, or apart from the government, Vice Chancellor also to act. No, there is also an institution. How far he has taken, I will talk to him tomorrow. And introducing language, giving respect to the Northeast people, they are our part and parcel by creation. So many things are fellowship linked families, fellowship colleges, all these things, constructive work will bring our heart together and good things will happen. One hand cannot come to, both the hands to come together. गुस्से से काम नहीं होता है, एक दूसरे से दिल से मिलाने से काम होता है. To my knowledge, till now, there was no governor of Nagaland from the political background. And he has, as a common man, he has the knowledge and he has the heart to do it. And he understands what we feel. That this is the difference, because always the past governors were either from the bureaucracy or from the military background. And this is very important that now we have a common man who can understand our problem and deliver it. It's just been like 6-7 days he's being appointed, but for him to personally come and interact with us, that was really overwhelming. And I don't know, the suggestions that we've given him are quite practical. It's not difficult to implement, like setting up a Northeast community hall, or like implement the courses implementation in universities may take time, because you know, like tribal language and all, it is going to take time, but like some issues which we have suggested, I don't think it's going to take time. So that will really give us the authenticity of the interaction. So as of now, we cannot predict whether this interaction is going to be really productive. It was indeed a noble gesture by the recently appointed governor of Nagaland to come and interact with the Northeast community in New Delhi to understand their issues and problems. Some of the suggestions that he gave were indeed valid, but the promise of Achhe Din by the new government will be tested if his suggestions are indeed brought into concrete action. With camera person Deepak, this is Prashanti reporting for Eastern Sky Media from New Delhi. अरुणाचल प्रदेश के जीरो में लगातार बढ़ रही लूट, चोरी और हमले की घटनाओं को देखते हुए हपोली मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं। हपोली मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का ये कहना है कि कई सालों से जीरो में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस हर बार आरोपी को पकड़ने में विफल रहती है। हपोली मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन ने योमदो तादू की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 19 जुलाई को जोरम वाइन शॉप में हुई लूट और सेल्समैन पर हुए हमले पर भी चर्चा की। सरकारी फ्लैट्स को अवैध रूप से किराए पर देने वालों के खिलाफ सख्त हुई प्रशासन। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पिछले कई सालों से होता रहा है सरकारी जमीन का दुरुपयोग। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और नाहरलगन में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लीज पर फ्लैट दिया जाता है, लेकिन अधिकारी उस फ्लैट को अवैध रूप से किराए पर देते हैं और पैसा वसूलते हैं। ऐसे में यह सवाल सामने आता है कि प्रदेश की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे इस तरह के काम कई वर्षों से होते रहे हैं, फिर भी सरकार को इस बात की खबर अब जाकर लगी है। ये प्रश्न चिन्ह आखिरकार सरकार पर ही लगना लाजमी है। इस मामले पर चीफ स्टेट ऑफिसर कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालो पोटोम ने ये कहा कि सरकारी जमीन को खरीदना या बेचना दोनों ही गैर कानूनी काम है और अगर अब से कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। ये गवर्नमेंट लैंड का मतलब है कि हमारा जो कैपिटल प्रोजेक्ट का अंदर में जितने भी लैंड हमारा यहाँ जो लोग पहले रहते थे, हमारा निशी भाई बहन लोग, उन्होंने हमारा सरकार को डोनेशन में दे दिया था विदाउट एनी कंडीशन। तो वो जो प्रोजेक्ट का जो लैंड है वो सरकार का ज़मीन है। तो आज तक जितना भी ज़मीन जो हमारा सरकार का है उसको इंडिविजुअल्स को लीज रेंट में दिया गया है 30 इयर्स का, तो लीज अलॉटमेंट में दिया गया है। तो इसमें जो भी ज़मीन उनका हाथ में है उसको आप नहीं सेल नहीं कर सकता है। ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आए दिन इलीगल गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड की जो सेलिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए चीफ एस्टेट ऑफिसर कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज एक नोटिफिकेशन देते हुए उन इलीगल सेलर वे इलीगल बायर को ये चेतावनी दी है कि अगर उनको इलीगल सेलिंग या इलीगल बाइंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की कार्यवाही की जाएगी। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पुलिस ने कुछ छात्रों को नशा करते पकड़ा रंगे हाथ। ईटानगर मोनेस्ट्री में छात्र कर रहे नशीली पदार्थों का सेवन।
ईटानगर पुलिस ने धार्मिक स्थल के परिसर में नशीली पदार्थों का सेवन करने के आरोप में कुछ स्कूली छात्रों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालो पोतोम ने ये बताया कि सूत्रों से जानकारी मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मोनेस्ट्री परिसर में छापा मारा और छात्रों को रंगे हाथ पकड़ा। तालो पोतोम ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि राज्य में कोई जुवेनाइल होम नहीं है, ऐसे में छात्रों को क्या दंड दिया जा सकता है। पकड़ने के लिए हमेशा पकड़ता है। तो शाम को बहुत से, जैसे हमारा वो संकी व्यू का संकी पार्क का पीछे शायद नदी किनार में होता है। और ईटानगर में अभी परसों जैसे ही हमको सूचना मिला कि ये गुम्पा मंदिर में भी अल्कोहल, एक मंदिर और एक होली प्लेस है और जहाँ थोड़ा लोग रिक्रिएशन के लिए घूमने के लिए जाता है ईटानगर के लोग, और वैसे तो वो हमारा गुम्पा है, तो उसमें भी लोग अल्कोहल ले रहा है और गांजा भांग भी ले रहा है। जैसे ही सूचना मिला तो हम हमारा थाना से पुलिस लेके उधर गया। जाने का साथ मोस्टली सभी लोग भाग गए हैं, पैदल से भागने का जगह है, भाग गया है, लेकिन हम लोग कुछ लोगों को उसमें इंटरसेप्ट किया और उसमें एक है वो लोग भांग और गांजा दोनों पीने वाला, दोनों को हम लोग अरेस्ट किया और थाना में जो केस करना है करने के लिए वहाँ में हैंड ओवर करके दे दिया है। एक साल पूरा होने के बावजूद भी वित्तीय संकट से गुजर रही है ईटानगर नगर पालिका परिषद। अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका 2013 में स्थापित की गई थी। एक साल गुजर जाने के बाद भी ईटानगर नगर पालिका परिषद सुचारू रूप से काम करते नहीं दिख रही है। ईटानगर नगर पालिका परिषद के डिप्टी चीफ काउंसलर कीपा बाबू ने बताया कि राज्य सरकार ने उन्हें 13 विकास कार्य दिए थे, लेकिन फंड की कमी के कारण वो किसी भी योजना पर काम नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही कीपा बाबू ने ये दावा भी किया कि अगर सरकारी कर्मचारियों से सिविल कर और व्यापार समुदाय से कर लेकर नगर पालिका को दिया जाए तो 3 महीने के अंदर वो राजधानी की काया पलट कर देंगे। म्युनिसिपल काउंसिल है, ये 73rd अमेंडमेंट का जो पंचायत और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो अरुणाचल के लिए एक इतिहास रहा और ये 1 साल कंप्लीट हुआ। तो 1 साल कंप्लीट में हम लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट हुआ, लेकिन मेन पावर जो है हम लोग ने एकोमुलेट अभी तक हो नहीं पाया। तो मटेरियल का बात करेगा तो आप सैनिटेशन और गार्बेज के बारे में आप सोचने लगेगा। तो 4 महीना पहले हम लोग को 34 व्हीकल हम लोग को हैंड ओवर किया स्टेट गवर्नमेंट ने, बट ऑल द व्हीकल इज ऑफ द रोड। जो एक्सकेवेटर है, टिपर है, जो गार्बेज लोडर है, जो डंपर प्लेसर होता है, तो डस्टबिन का जो कंटेनर होता है, तो व्हीकल के साथ ऑटोमेटिक कंटेनर होता है, तो सारा ऑफ रोड में है। एट द सेम टाइम वी आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ दिस कि उनको रिपेयर करने का कोई फंड ऐसा अभी तक कोई सुविधा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली में पिछले काफी समय से बंद पड़ी यह शमशान भूमि एक बार फिर से खोली जाएगी। भूमि अतिक्रमण के चलते बंद पड़ी थी शमशान भूमि। 2004 में शमशान घाट के लिए भूमि को चिन्हित किया गया था और इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा शमशान भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब कई सालों बाद इसे फिर से खोला जा रहा है। ईटानगर नगर पालिका परिषद के डिप्टी चीफ काउंसलर कीपा बाबू ने ये जानकारी दी कि अब फिर से शमशान भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। ये बेसिकली नोबल कॉज के लिए, जो इंसान का जो मरण के बाद हिंदू लोग बोलता है कि यमराज के हुआ, फिर क्रिश्चियन बोलता है कि स्वर्ग में जाने का, तो किसी का वो नहीं करता, उसके लिए मैंने बनवाया था। और जमीन 15,000 स्क्वायर मीटर का था, यानी कि 4 एकड़ आधा उससे ज़्यादा था ज़मीन। मैं किसी से परचेज करके मैंने इसको इस्टेब्लिश किया था 2004 में। तो मैं उस समय विधायक था और मैं पब्लिक को प्रॉमिस भी करा दिया था कि मैं सोचा कि सारा अरुणाचल में अगर शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, मैं करवा देता हूँ। मैं करा ही दिया था। तो इसके बाद
एक तो है हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट कि इसको बंद करना चाहिए। तो हमारा जो डिपार्टमेंट का जो R1 ऑफिसर है और पॉलिटिकल ओपोनेंट, इन्होंने इसको बंद करवा दिया। 2004 में ये शमशान घाट केपा बाबू के इनिशिएशन में बनाया गया था और जब हमने इसके बारे में पूछताछ की, इसके डिफंक्ट होने के कारण और यहाँ पर जो कचरा जमा होकर था, इसके बारे में जब हमने केपा बाबू से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ओपोनेंट, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट के वजह से ये डिफंक्ट हो चुका था और जो एनक्रोचमेंट का भी यहाँ बहुत सारे केसेस आए थे, वो भी उन्हीं ओपोनेंट के वजह से ही हुआ था। मगर अभी ईटानगर म्युनिसिपल के डिप्टी चीफ काउंसिलर होने के नाते वो अभी फिर ये इस काम को, इस बरेल ग्राउंड को जरूरी समझकर ये दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा रास्ते की कटाई हो रही है और यहाँ के बाउंड्री वॉल को भी आने वाले समय में बनाने का सोच के रखा है। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेबा रियल एस्टेट लिमिटेड अपने 97,000 शेयर होल्डर्स को फंड देने में विफल रहा है। सेबा को 17 करोड़ रुपए अपने ग्राहक को लौटाने थे, जो नहीं हो सका। इस पूरे मामले पर ऑल अरुणाचल प्रदेश सेबा रियल एस्टेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष लांगबिया तोमुंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा लांगबिया तोमुंग ने। 17 करोड़ देना है, उसी को आप डिमांड कर रहे हैं जियो को कि दे दो। नहीं, उसको भी करके रिवर व्यू से हो या फिर कहीं से भी हो, रिवर व्यू से हो, अभी बेनिफिट कमा रहा है। और रिवर व्यू से तो अभी ये क्राइम रेंज से हो, देखा पम से हो, उसको गवर्नमेंट लोग, पुलिस लोग लेके उसको थोड़ा जल्दी चार्जशीट फाइल करके जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके वो चीज़ से विसा उसा करके हम लोग को थोड़ा जल्दी रिटर्न करने से ठीक है। अभी ये 17 करोड़ से जो हालत है वो लोग हम लोग को देने से ठीक है। उसको साथ देने वाला अब पुलिस लोग थोड़ा साथ देखिए, उसको थोड़ा मारपीट करके निकल देने से ठीक है। 26 जुलाई को नागालैंड के दीमापुर में होने वाले डांसिंग कंपटीशन में अरुणाचल प्रदेश का डांस ग्रुप डांसिंग डेविल्स भी हिस्सा लेगा। अरुणाचल प्रदेश का डांसिंग ग्रुप डांसिंग डेविल्स 2008 में बना था। डांसिंग डेविल्स ने अरुणाचल में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया है और अपने इस हुनर से लोगों का दिल जीता है। कई जगह अपना जलवा बिखेर चुका ये ग्रुप अब नागालैंड में 26 जुलाई को होने जा रहे डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है। ये डांसिंग कंपटीशन कोरियन कल्चरल सेंटर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। डांसिंग डेविल्स के मैनेजर ने ईस्टर्न स्काई मीडिया को ये बताया कि किस तरह 2008 में ये ग्रुप बनाया गया था। साथ ही ग्रुप के सदस्यों ने भी डांस को लेकर अपने पैशन के बारे में बताया। इतना सामने आता है। ग्रुप मेंबर से भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आपका नाम क्या है और आप अभी क्या कर रहे हैं? वैसे मेरा नाम तो आनंद चिंते है और हम तो फिलहाल एक प्रोफेशनल डांसर है, प्लस एक स्कूल पे एक डांस टीचर भी है और वही से हम थोड़ा मोड़ा कमा रहे हैं अपना डांस के हुनर से। तो इस डांसिंग प्रोफेशन को आप अपना करियर बनाना चाहेंगे क्या? वैसे भी है, डांस को हम करियर भी बनाना चाहता है और अपना पढ़ाई के ऊपर भी हम करियर बनाना चाहते हैं। मेरा 2 ऑप्शन है जिसमें हम ज़्यादा आगे जा सकते हैं, हम उसी को अपना करियर बनाएगा। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती है? मेरा नाम कारबोम रिराम है, हम एक स्टूडेंट है, क्लास 12 पे पढ़ते हैं। और जब आपने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तो आपके माइंड में क्या था कि इसको आप एज ए हॉबी लेंगे या फिर इसको एक करियर बनाएंगे? या इट इज माय पैशन टू डांस, तो इससे मेरा करियर है ये। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।